Good morning, students. Myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now continue my chapter for class 10, chapter number 3, linear equations in two variables. We already discussed about the two methods for the solve the linear equations of two variables. Find the values for x and y. First method by using the substitution method, second by eliminating method. I think आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से. लास्ट मेथड में आपको यहाँ बताना चाहूँगा. नेक्स्ट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट मेथड, दिस मेथड एंड बड़ी बहुत ही ये टेक्निकल मेथड है. दिस मेथड नाउन एज ए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. नाउ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन given in the standard form a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Second equation a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Variables x and y are same but constant a1, a2, b1, b2 and c1, c2 are the different. Maybe here constant a1 is the means coefficient of x in first equation. A2 is the coefficient of x in second equation. Similarly for b1, b2 and c1 and c2. Always equation write in the form of this one, and in right hand side always put the 0 and put the equation number. It is the equation number 1 and it is the equation number 2. Now how can we find out the values for x and y using this method? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. It's very simple and very easy. x और y को एक साथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पर तो देखते हैं. अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं. वी टेक द वन एग्जाम्पल. मैं आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. सपोज वन क्वेश्चन इज गिवन x minus 3y minus 3 is equal to 0 and second equation is next is 3x minus 9y and minus 2 is equal to 0. यहाँ पे मैं कांस्टेंट को चेंज कर रहा हूँ. इट इज द 2 एंड इट इज द 3 एंड इट इज 4. 2x minus 3y minus 3 equal to 0 and 3x minus 4y minus 2 equal to 0. You take the first equation number 1, it is the equation number 2. अगर suppose equation आपको इस फॉर्म में गिवन है 4x minus 5y equal to 7, तो आपको पहले क्या करना है? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट राइट द इक्वेशन इन फॉर्म दिस वन 4x minus 5y minus 7 equal to 0. First write the equation always in form of a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Means ax plus by plus c equal to 0. Now after that, what is the cross multiplication method? इस मेथड को मैं राइट हैंड साइड में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. फर्स्ट राइट द हियर x and write y and here write the 1. अगर आपने इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखा है तो आपको x, y, 1 तीनों नंबर आपको पॉजिटिव लेने हैं. We take the x is positive, y is positive, 1 is positive. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. यहाँ पे स्टार्ट आपको करना है. मैं पहले इस इक्वेशंस को ले रहा हूँ. ये एग्जाम्पल अपन बाद में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा. पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अगर आप x से स्टार्ट करते हैं आपको यहाँ से स्टार्ट करना है फर्स्ट सेकेंड नंबर से b1 b2 से. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ b1 एंड b2. थोड़ा सा गैप छोड़. सेकेंड c1 c2. नाउ c1 एंड c2. नेक्स्ट नंबर c1 आफ्टर c1 c2 नेक्स्ट नंबर आपके पास आता है a1 a2 एंड लास्ट नंबर अगेन b1 b2. b1 एंड b2. क्या देखा आपने? x और y और 1 को थोड़ा सा सेंटर में रखिएगा.
हमने स्टार्ट किया B1 B2 से और एंड भी अपन ने B1 B2 से ही हमने एंड किया वापस से, स्टार्टिंग फ्रॉम B1 B2 एंड एंडिंग फ्रॉम B1 B2. First write the coefficients of y, then after that constant term, then after that coefficient of x, and then write the coefficient of y. Okay? Now, then write x whole upon is equal to y whole upon is equal to 1 whole upon. By cross multiplication, that means आपको कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट फ्रॉम ऊपर से लेकर नीचे की तरफ चलना है. B1 to C2, so B1 C2. Then माइनस, साइन आपको माइनस यूज करना है, और देन दिस वन इज B2 into C1. इसको इससे मल्टीप्लाई करना, then B2 into C1. नेक्स्ट सेम कंटिन्यू आपको वही रिपीट करना है, कुछ चेंज नहीं किया है. C1 and A2, then minus C2 A1. Again continue A1 B2 and minus A2 B1. आप देख सकते हैं x कॉफिशिएंट लिखेंगे -3 -4. देखिए साइन यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया. पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, और ये यहां से स्टार्ट किया, देन -3 -2. अब आते हैं y के साथ में, -3 -2, then 2 and 3. After that 1 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ये काउंट करके आप चेक भी कर सकते हैं. कहां से स्टार्ट किया था, -3 -4, वापस कहां लिया, -3 -4. y का कोफिशिएंट देखो, यहां से स्टार्ट किया अपन ने, ये यहां पे एरो लगाया, -3 -4, -3 -2, then 2 and 3, and again -3 and -4. ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और यहां पर भी मैंने वही किया. अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. टेक फर्स्ट एंड लास्ट, ऑल आर इक्वल, सो x इज इक्वल टू टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इनटू 1 से जब इनटू होगा तो वापस क्या आएगा, B1 C2 minus B2 C1, and whole upon as it is A1 B2 and minus A2 B1. Similarly y equal to, वापस से इसको अपन ने इससे मल्टीप्लाई किया, सो दिस इंटू 1, वापस से वही आएगा, C1 A2 minus C2 A1 अपॉन सेम A1 B2 minus A2 B1. मैंने कहा भी था यहाँ पे, इसीलिए डिनोमिनेटर्स जो है ऑलमोस्ट वो सेम आता है, वो इसीलिए सेम आ रहा है. यहाँ पर भी देखो सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. चलिए अभी डिनोमिनेटर को छोड़िए, सिंपली आपको ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको देखना है. यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन आप यहां पे देखिए. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, x अपॉन, वही मेथड यूज कर रहे हैं. देखो दिस इंटू दिस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा, 3 into 2 6, इजी आ गया नंबर. दिस इंटू दिस, माइनस प्लस हो गया, 4 into 3 12, and is equal to y upon this into this, -3 into +3, 3 into 3 9, तो -9, and माइनस, वो माइनस साइन जो एग्जैक्टली ये आप पहले से यूज कर लीजिए. यहां पर आपने जो यूज किया था माइनस प्लस, वो प्लस हो गया, यहां पे भी माइनस प्लस हो गया. अदरवाइज वो साइन का ध्यान रखना है. अब देखिए दिस इंटू दिस, ये -2 है, -2 and 2 -4, तो ये -4 आ गया. दिस -4 and दिस +4 हो जाएगा. यहां पे साइन का ध्यान रखना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 अपॉन 2 into -4, 4 into 2 -8. माइनस पहले यूज कर लीजिए, वो माइनस पहले पुट कर, कभी गलती नहीं होगी. दिस इंटू दिस, -9,
-9 को दिमाग से लेके यहाँ चलो तो माइनस माइनस प्लस और ये 9 हो गया। इसको पहले सॉल्व कर लो। 1/9 और -8 आपको क्या मिला? 1। क्रॉस में इंटू कर लीजिए। x अपॉन पहले इंटू सॉल्व कर लो। 12 और 6 बट -6 इक्वल टू y अपॉन 9 and 4 -5। बिल्कुल इजीली इस दोनों को एक साथ लेंगे। x -6 अगर आपको डाउट है तो पहले ये लिख लीजिए एंड y अपॉन -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन। फाइनली what is x? x equal to -6 and y is equal to -5. This is the answer. This method known as a by cross multiplication method. So value of x is -6 and value of y is -5 for this system of linear equation in two variable. And also we write the formulas for in this form. अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, x और y की वैल्यूज को डायरेक्ट इनको फॉर्मूले की फॉर्म में याद भी करते हैं। अब मैं वैसे तो कहना नहीं चाहूँगा, अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a2 b2 सॉरी माइनस a2 b1। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, याद हो ही जाएगा। ये दोनों अलग अलग याद रखने, अगर 1 2 का थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब a1 b1 c1 ये क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। a1 जो है आपको कहाँ से लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ x फॉर फर्स्ट इक्वेशन, b1 आपको लेना है कोएफिशिएंट ऑफ y फॉर सेकंड इक्वेशन, c1 आपको लेना है कांस्टेंट फॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही a2 और b2 और c2 के लिए याद भी करें। तो याद करने के लिए डायरेक्ट लिखोगे और फिर इनको इंटू करोगे। फिर मैं आपको एक यहाँ पे सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप याद करने की बजाय आप इस मेथड को यूज़ करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें गलती नहीं होगी और इस मेथड में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस मेथड से भी करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो करोगे उसमें उतना ही टाइम लगेगा, ये उस टाइम में आप ये सॉल्व करोगे। यहाँ गलती होने के चांसेस है, यहाँ 100% गलती होने के कोई चांसेस नहीं है। मेथड ये यूज करें आप। दिस मेथड नाउन एज ए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, तो आज इस मेथड को सॉल्व करो। केवल इस मेथड के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ओनली सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। उसके बाद में इस मेथड के अकॉर्डिंग आगे जो भी हैं मैं आपको बताऊंगा। आगे अपन को बहुत कुछ करना है अभी इस चैप्टर के अंदर। अभी मैंने केवल आपको बताया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व बाय यूजिंग 3 मेथड। अभी अपन को कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है और अपन को कुछ अदर टाइप की जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपन को सॉल्व करने हैं। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, केवल मैंने जितना कहा है उतना करिए। सिलेबस आपका कंप्लीट होगा 101% टाइम पे, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ जैसे चल रहा है वैसे आप चलिए मेरे साथ साथ, तब तो कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज आपकी इच्छा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, गुड डे।